first session about contract, we have discussed what is contract, how contract is formed. Now in this that is session second video, we are going to discuss about kinds of contract. So first kind of contract, it is contracts that is classified on the basis of enforceability also. They are classified in the basis of mode of creation, and then they are classified on the basis of extent of execution, then the basis of the form of contract. So basically contracts has been classified in four categories. First is from the point of view of enforceability, second is from the point of view of mode of creation, then view of extent of execution, then from the point of view of form of contract. So first is point of view of enforceability. Enforceability means whether a contract this is enforceable or not. What kind of contracts are enforceable? So first is a valid contract. Valid contract is defined under section 2 clause H of Indian Contract Act 1872. Valid contract means it is an agreement enforceable by law. So it is a simple definition. It is an agreement which is enforceable by law. Second kind of from the point of view of enforceability is voidable contract. Voidable contract is defined under section 2 clause I of Indian Contract Act 1872. It says it is an agreement. So what do you mean by voidable contract? Voidable contract क्या है? This contract is enforceable unless and until it is avoided by the other party or rescinded by the other party. तो मीन्स ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें आपकी फ्री कंसेंट नहीं है. जहाँ पे आपकी फ्री कंसेंट नहीं है वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. तो जब तक आप उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड नहीं करोगे, ख़त्म नहीं करोगे या अवॉइड नहीं करोगे, एंड until then that contract is a valid contract. So if you avoid that contract or resigned that contract by the party जो कर सकती है उसके भी आप अगर आप नहीं करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट अगर करोगे तो वो voidable contract होगा. So voidable contract as defined under section 2I, it says it is an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of other or others. Is it clear? For example, अगर आपसे कोई agreement कर रहा है, person wants to purchase your property worth 50 lakh. अब इसमें आप वो प्रॉपर्टी बेचना नहीं चाहते हो, आपने मना कर दिया कि मैंने ये प्रॉपर्टी नहीं बेचनी है. फिर भी वो आपसे बार बार कह रहा है कि मैंने आपकी ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, अगर 50 में नहीं 55 लाख में दे दो ये, लेकिन नहीं मान रहे. फिर आपसे वो आपको डरा धमका के वो प्रॉपर्टी आपसे खरीद रहा है. इट मीन्स आपकी फ्री कंसेंट नहीं थी, आपने डर के मारे वो प्रॉपर्टी पेपर से साइन कर दी, उसको प्रॉपर्टी बेच दी है. In that case what happens, that is not a free consent, so contract is a voidable contract. कब voidable contract होगा? अगर आप उसको अवॉइड करोगे, रिसाइंड कर दोगे, मतलब कि कोर्ट में जाके केस कर दोगे, then it will be a voidable contract, otherwise it is a valid contract. Third kind of contract from the point of view of enforceability is void contract. Void contract is defined under section 2 clause J. It says a contract which ceases to be enforceable by law becomes void. कि जो पहले तो इन्फोर्सेबल था बट नाउ इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल, वो इन्फोर्सेबल नहीं रहा है, तो दैट कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम void. Is it clear? Which is not a contract which is not. So what section 2G says? It says an agreement which is not enforceable by law is said to be void. An agreement which is not enforceable by law is void. An agreement not enforceable by law is said to be void. Now there is a term void ab initio. Void ab initio means that no agreement at all. देर इज़ नो एग्रीमेंट एट ऑल फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरू से ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहीं माइनर के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो तो स्टार्टिंग से ही इनिशियल स्टेज से ही वॉइड है, क्योंकि माइनर के साथ हम एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते. जो पर्सन की जिसके साथ आप एग्रीमेंट करना चाहते हो, ही मस्ट बी मेजर, ही मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड.
ठीक है, या आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हो विदाउट एनी कंसिडरेशन, इवन दैट एग्रीमेंट इज वॉइड गिवन अंडर सेक्शन 25. So void contract is an agreement not enforceable by law is said to be void. Is it clear? Now from the point of view of mode of creation, that is express contract. एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जहाँ पे दोनों पार्टीज़ हैं, वो एक पार्टी ऑफर कर रही है, दूसरी एक्सेप्ट कर रही है, चाहे वो स्पोकन वर्ड्स में कर रही है, ओरली कर रही है, चाहे वो रिटन कर रही है, दैट इज़ एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या है आपका, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि जो ऑफर और एक्सेप्टेंस है, पार्टीज़ ने, एक पार्टी ने ऑफर किया, दूसरी ने एक्सेप्टेंस किस तरह से किया, बाय वर्ड्स नहीं किया उसने, ही हैज़ एक्सेप्टेड दैट ऑफर बाय एक्ट और बाय कंडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अब आप रेस्टोरेंट में खाने जाते हो, रेस्टोरेंट में जा रहे हो, डिनर के लिए जा रहे हो, वहाँ पे आप कोई ओरली या रिटन वर्ड्स में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो कि हाँ जी ठीक है हम खा रहे हैं तो हम उसके लिए पे करेंगे. नो, इट इज़ एन इम्प्लाइड. आपके कंडक्ट से पता लग रहा है कि अगर आप वहाँ बैठ के खाना खा रहे हो तो यू मस्ट बी पेइंग फॉर इट. इट इज़ एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. देन कम्स कंस्ट्रक्टिव और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. अब ये जो कंस्ट्रक्टिव या क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये किसी कॉन्ट्रैक्ट करने से अराइज नहीं होते. पार्टीज़ में अगर कोई आपको होगी पार्टीज़ ने कॉन्ट्रैक्ट किया, वैसे नहीं अराइज होते. ये क्या है, ये एक स्पेशल सर्कमस्टांसिस हैं. तो इसको, ये जो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स है, दैट कम्स अंडर सेक्शन 68 to 72 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी बच्चे को जो लुनैटिक है और यू कैन से माइनर है, जिसके पेरेंट्स नहीं है, उसके गार्डियन उसको मेंटेन कर रहे हैं, उसके मेंटेन कर रहे हैं, एट दैट टाइम क्या होगा कि अगर गार्डियन है, माइनर को पर्सनली नहीं लाइबल ठहरा सकते वो, व्हाट हैपन्स, दे कैन रिम्बर्स इट फ्रॉम देयर प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टी उसमें से रिम्बर्स कर सकते हैं. दैट इज कंस्ट्रक्टिव और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. इज इट क्लियर? देन थर्ड काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूशन. एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, इसमें एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट आ जाएंगे और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट आ जाएंगे. एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं, जब दोनों पार्टीज़, जो कॉन्ट्रैक्ट की दो पार्टीज़ हैं, उन्होंने अपनी ऑब्लिगेशन, जो उनकी ड्यूटी थी, वो परफॉर्म कर दी. फॉर एग्ज़ाम्पल, बुक्स, आप बुक सेलर के पास गए हो, आपने बुक खरीदी ऑन कैश पेमेंट, दैट इज़ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. इज इट क्लियर? दैट इज़ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. तो वहाँ पे कि दोनों पार्टीज़ ने अपनी अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर दी, ऑब्लिगेशंस परफॉर्म कर दी. देन मीन्स कि प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कह सकते हो आप. एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स को यू कैन से प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स. ना एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स कहाँ पे है कि जहाँ पे दोनों पार्टीज़ ने, दे हैव टू स्टिल परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशंस, ठीक है. अब इसमें क्या, फॉर एग्जाम्पल कि एक पार्टी है, ये उसने प्री मेडिकल स्टूडेंट है, सपोज प्री मेडिकल स्टूडेंट है, वो एक टीचर के पास गया एंड ही सेड कि भाई मेरे को तो आपसे कोचिंग लेनी है. तो उसमें क्या है कि उसने बी ने प्रॉमिस किया कि ठीक है आई विल पे यू, एंड ए ने कहा ओके आई विल टीच यू. तो इसमें क्या है, दोनों पार्टीज़ को भी परफॉर्म करना है, दैट इज़ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स. इज इट क्लियर? देन कम्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब और एक तो होते हैं ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं आपके, एक होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स. अब जो ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स के बीच में हुआ है, उन्होंने ड्राफ्ट कर दिया, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सेट कर दिए हैं, ठीक है. टर्म्स एंड कंडीशन का पार्ट, ये डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स ऑफ द केसेस. तो ये ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट हो गए जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे. देन कम स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट. स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे क्या है, काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दैट हैज़ टू बी एंटर्ड into by a person from a practical point of view. स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं, ठीक है. डॉक्यूमेंट है, उस पर कंडीशंस भी प्रिंट होती हैं, उसको एक एक को नहीं बताएंगे कि ये कंडीशंस है, उसमें ऑलरेडी जो आपकी रिसिप्ट है या कोई भी पेपर है, वहाँ पे ऑलरेडी कंडीशंस प्रिंटेड होंगी, और उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि वो आपको स्पेसिफिकली बताएगा शॉपकीपर कि भाई ये जो इसके पीछे कंडीशंस लिखी हुई हैं, यू आर योर सेल्फ लाइबल फॉर दैट. दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स. अब हम डिस्कस करेंगे, नाउ विल डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दी
how contract is formed. So we have discussed the conditions under section 10. So first condition was an offer or proposal by one party and acceptance of that offer by another or an agreement. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ऑफर क्या होता है. सी अब जो हमारी मेजर टर्म ऑफर है, दैट हैज़ बीन यूज्ड, ऑफर हैज़ बीन यूज्ड अंडर English law, but under Indian law the term proposal is used. proposal, ठीक है. तो सेक्शन 2 क्लॉज ए, सेक्शन 2 क्लॉज ए डिफाइंस ऑफर. इसीलिए सेक्शन 2 क्लॉज ए डिफाइंस ऑफर. तो ऑफर के डेफिनेशन में क्या है, जब एक पर्सन, देखो मेरे को कुछ सेल करना है, इफ़ आई वांट टू सेल समथिंग, तो मैं क्या किसी और पर्सन को बोल रही हूँ कि मुझे ये चीज़ बेचनी है, क्या आप आर यू इंटरेस्टेड टू परचेज सच थिंग, क्या आप इंटरेस्टेड हो. तो उस केस में क्या है कि ऑफ़र, व्हाट इज़ द ऑफ़र, कि आप अपनी विलिंगनेस दूसरे पर्सन को बता रहे हो. किस पर्पज़ के लिए बता रहे हो, उसकी असेंट लेने के लिए, कि वेदर ही वांट्स टू एक्सेप्ट दैट ऑफ़र और नॉट. सो इफ़ यू लुक एट द डेफिनेशन ऑफ ऑफ़र, दैट इज सेक्शन 2 क्लॉज ए, when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or absentees, he is said to make a proposal. Is it clear? कि जब एक पर्सन दूसरे को अपनी विश बताता है, विलिंगनेस बताता है, कि किस पर्पज़ के लिए बताता है, कि उसकी असेंट लेने के लिए, कि उसको ये ऑफ़र एक्सेप्ट करना या नहीं करना, दैट इज़ ही हैज़ मेड अ प्रपोजल, ही हैज़ मेड एन ऑफ़र. सो अब मैंने आपको यही बोला था कि इंडियन लॉ में टर्म प्रपोजल यूज़ है. तो ऑफ़र और प्रपोजल सेम है, डिफरेंस ओनली इज़ दैट इन द इंग्लिश लॉ इट इज़ ऑफ़र एंड इन इंडियन लॉ इट इज़ प्रपोजल. सो जो पर्सन प्रपोजल ऑफ़र कर रहा है, ही इज़ नोन एज द प्रॉमिसर, और यू कैन से ही इज़ नोन एज द ऑफरर, एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफ़र इज़ कॉल्ड द ऑफरी और प्रॉमिसी. इज इट क्लियर? दैट इज़ ऑफरी और प्रॉमिसी. इज इट क्लियर? सो देयर मस्ट बी ऑफर बाय वन पार्टी, कि एक पार्टी है वो अपनी विलिंगनेस बताएगी दूसरे पर्सन से कि वो उसको उसके असेंट लेने के लिए बोलेगी. अब ये जो ऑफ़र है, ऑफ़र सर्टेन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए. ऑफ़र वेग नहीं होनी चाहिए टर्म्स, दैट मस्ट बी क्लियर. और मैंने कहा कि आई वॉन्ट टू बाई वन ऑफ योर horses, I want to buy one of your horses if I can afford it. Is it a valid offer? मैंने कहा मैं आपका एक हॉर्स खरीदना चाहती हूँ अगर मैं अफोर्ड कर पाऊँगी. Is it a valid offer? So is it a valid offer? No, it is not a valid offer. Why it is not a valid offer? Because there is no certainty. Your offer is not clear. Is it clear? So offer is not clear. If I say I want to purchase your laptop worth rupees 30,000 or 35,000, even this this offer is not a valid offer. Why? Because its terms are not clear. Its terms are vague. आप हमें यही नहीं पता कि मैं आपका खरीदना 35,000 में चाहता हूँ या 30,000 में चाहता हूँ. Is it clear? Next is that offer should be communicated. ठीक है. अब जब हमने डेफिनेशन की थी ऑफ़र की, तो उस डेफिनेशन में हमने बोला था व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर. तो सिग्निफाई मीन्स ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी. ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी. इज इट क्लियर? कि ऑफ़र है वो दूसरी पार्टी को कम्युनिकेट आप करोगे. अगर आपने ऑफ़र कम्युनिकेट ही नहीं किया देन दैट इज़ नो ऑफ़र. ठीक है. अगर ऑफ़र दूसरी पार्टी को कम्युनिकेट नहीं हुआ तो देन दैट ऑफ़र इज़ नॉट a valid offer. If you look at section 3 क्या कहता है? कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल. ठीक है. तो सेक्शन 3 में भी एक क्लियरली बोला कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल मीन्स कि प्रपोजल शुड बी कम्युनिकेटेड. इज इट क्लियर? देन एक्सेप्ट भी होना चाहिए. ये भी ज़रूरी है कि अगर आपने ऑफ़र कम्युनिकेट किया है तो वो एक्सेप्ट या नॉट एक्सेप्ट जो भी आपका डिसीजन है वो भी होना चाहिए. अगर एक्सेप्ट ही नहीं हुआ देन इट इज़ नॉट एनी, कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं राइज हुआ. ऑफ़र तो आपने कर दिया कम्युनिकेट, बट एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुई है तो दैट इज़ नॉट एनी ऑफ़र. सपोज मैंने आपको ऑफ़र किया आई वांट टू सेल माय टीवी फॉर वर्थ रुपीज़
10,000। तो लेकिन आपने क्या किया, आपने अपने माइंड में सोच लिया कि ठीक है आई वॉन्ट टू परचेज योर टीवी फॉर वर्थ ₹10,000, लेकिन आपने मुझे कम्युनिकेट नहीं किया। इट इज़ नॉट एनी एक्सेप्टेंस, कोई वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, कोई ऑफर कॉन्ट्रैक्ट राइज नहीं होगा। आई विल नॉट बी बाउंड बाय दैट। इज इट क्लियर? अगर आपने अपना ऑफर रिवोक करना है, इवन यू कैन रिवोक योर ऑफर, कब रिवोक कर सकते हो? जब तक एक्सेप्टेंस नहीं हुई है। तो दैट ऑल्सो द रेवोकेशन शुड ऑल्सो बी कम्युनिकेटेड, दैट सेक्शन 3 सेज। इज इट क्लियर? देन कम्स योर सेक्शन, इफ यू लुक एट सेक्शन 4, सेक्शन 4 चलो हम बाद में करते हैं। सो main point is that offer must be communicated. There is a famous case on this point that offer must be communicated is लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। इस केस में क्या हुआ था, डिफेंडेंट था जो, उसके नेफ्यू घर से भाग गया था, घर से गुम हो गया था। तो जो प्लेंटिफ था, प्लेंटिफ कौन था? लालमन शुक्ला। ही वॉज इस डिफेंडेंट सर्वेंट, डिफेंडेंट का सर्वेंट था। वो उस बॉय, मिसिंग बॉय को ढूंढने निकला था, ढूंढने चला गया था। जब वो प्लेंटिफ ढूंढने चला गया, उसके बाद डिफेंडेंट ने एक रिवॉर्ड अनाउंस किया था ₹501 का, कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लेके आएगा। ठीक है, अब प्लेंटिफ है उसके नेफ्यू को ढूंढ के लेके आया, लेकिन उसको ऑफ़र के बारे में बाद में पता लगा, जब वो ऑलरेडी बॉय को ट्रेस कर लिया उसने। तो उसने फिर डिफेंडेंट को बोला कि मैंने आपके बॉय को ट्रेस किया, मुझे पता लगा है कि आपने एक रिवॉर्ड अनाउंस किया था, तो फॉर दैट रिवॉर्ड, अब उस रिवॉर्ड के लिए क्या है कि, और आई वॉज वो रिवॉर्ड मुझे पे करो। प्लेंटिफ ने, सॉरी डिफेंडेंट ने पे करने से मना कर दिया। देन ही वेंट टू द कोर्ट। तो कोर्ट ने भी ये कहा कि भाई आप इग्नोरेंट थे। प्लेंटिफ था जो लालमन शुक्ला था, ही वॉज इग्नोरेंट ऑफ द रिवॉर्ड। सो अगर उसे ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ तो वो कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता, दे कॉन्ट्रैक्ट कोई अराइज नहीं हुआ। सो ही वॉज नॉट इंटाइटल्ड टू क्लेम एनी रिवॉर्ड। इज इट क्लियर? या नाउ नेक्स्ट कम्स, ये था आपका कि ऑफ़र कम्युनिकेट होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। ठीक है, फिर आप ऑफ़र उस पर्पज़ से कर रहे हो कि आपकी इंटेंशन है कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने की। देन जो आपका ऑफ़र है, इट मे बी एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। इज इट क्लियर? देन काइंड्स ऑफ ऑफ़र। काइंड्स ऑफ ऑफ़र में सबसे पहले आपका आता है जनरल ऑफ़र। जनरल ऑफ़र का मतलब क्या? देर आर 2 काइंड्स ऑफ ऑफ़र मेनली, जनरल एंड स्पेसिफिक ऑफ़र। जो जनरल ऑफ़र्स हैं वो क्या है कि आप पूरी पब्लिक एट लार्ज को करते हो, और स्पेसिफिक ऑफ़र क्या है, यू आर मेकिंग एन ऑफ़र टू अ स्पेसिफिक पर्सन ओनली, एक पर्सन को ही कर रहे हो। ठीक है, लेकिन जनरल ऑफ़र आप सबके लिए कर रहे हो। कोई न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया आपने, तो वो ऑफ़र क्या है? जनरल ऑफ़र है, सबके लिए है। अब स्पेसिफिक ऑफ़र में आपका क्या है कि जिस पर्सन को आप ऑफ़र कर रहे हो वो आपकी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करता है आपको। बट जनरल ऑफ़र में इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपको हर एक बंदा आके कम्युनिकेट करे कि मैंने आपका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। तो जनरल ऑफर में क्या है? टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होती हैं। ठीक है, जो पर्सन आगे आता है वो जनरल ऑफर में उसी पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है जो पर्सन आगे आता है, कंडीशंस को परफॉर्म करता है। देन दैट इज, जब उसने कंडीशंस को परफॉर्म कर दिया तो वहाँ पे क्या है कि दैट अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। तो जनरल ऑफर्स में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट नेसेसरी। Is it clear? There is a famous case on this point, Carlyle versus Carbolic Smoke Ball Company. Carlyle versus Carbolic Smoke Ball Company में क्या हुआ था? ये कंपनी ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाली थी कि £100 वो पे करेगा जो, अगर उन्होंने एक्चुअली उन्होंने क्या किया था, एक मेडिसिन मेडिसिन दी थी इन्फ्लुएंजा कोल्ड के लिए, और या फिर कोई भी जैसे कि कोल्ड की वजह से कोई बीमारी हो रही है, डिजीज़ हो रही है, तो उसके लिए उन्होंने एक मेडिसिन निकाली थी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जब वो जो मेडिसिन लेने के बाद अगर किसी को नहीं ठीक आ रहा है तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने मेडिसिन लिया कि नहीं फिर भी फ़र्क पड़ रहा है, तो उनके अकाउंट में वो £100 पे करेंगे, उन्हें £100 पे करेंगे, और उसके लिए उन्होंने £1000 ऑलरेडी ही अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाए हैं। तो इसमें जो लेडी कार्लिल थी प्लेंटिफ, शी यूज द स्मोक बॉल्स अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शंस। ठीक है, कंपनी की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग उसने बॉल्स यूज़ की हैं। तो उसमें क्या है कि शी डिडंट रिकवर्ड फ्रॉम दैट।
तो उसने रिकवर नहीं हुई तो उसने रिवॉर्ड क्लेम किया। रिवॉर्ड जब क्लेम किया, अब वहाँ पे डिफेंडेंट्स क्या कह रहे हैं कि या जो टर्म्स की ऑफ़र थी बहुत ज़्यादा वेग हैं, कोई ऐसे नहीं है कि डेफिनेट ऑफ़र तो था ही नहीं, स्पेसिफिक ऑफ़र नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं था, तो इस वजह से कोई ऑफ़र नहीं है, उनकी कोई इंटेंशन नहीं थी, उन्होंने जस्ट एक एडवर्टाइजमेंट किया था। जब उन्होंने मना कर दिया, लेडी वेंट टू द कोर्ट, कोर्ट ने भी वही कहा कि इट इज़ अ जनरल ऑफर, कंपनी इज़ लायबल फॉर दैट, क्योंकि उन्होंने जस्ट एडवर्टाइजमेंट के पर्पज़ से ही उसमें न्यूज़पेपर में नहीं निकाला। अगर उन्होंने निकाला है, एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में दिया है, तो अगर किसी उनका पेशेंट ने एक्सेप्ट की है टर्म्स एंड कंडीशन, उनका फॉलो किया है, देन दे आर लायबल टू पे टू द पेशेंट। सो लेडी कार्लिल वॉज हेयर, उसको वहाँ पे सॉरी जो कंपनी थी कार्लिल कार्बोलिक वर्क्स स्मॉल कंपनी, दैट कंपनी इज़ लायबल टू पे टू दी लेडी। इज इट क्लियर? नाउ कम्स, तो ये जनरल और स्पेसिफिक ऑफर था। नाउ कम्स क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या है? क्रॉस ऑफर में दो पार्टीज़ हैं, वो आइडेंटिकल ऑफ़र करते हैं एक दूसरे को, आइडेंटिकल ऑफ़र करते हैं एक दूसरे को, और उनको एक दूसरे के ऑफ़र के बारे में नहीं पता है, मीन्स कि उनके ऑफ़र क्रॉस कर जाते हैं, क्रॉस करते हैं। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ए ने बी को लेटर लिखा कि उसको उसकी ए को अपनी वॉच 2000 रुपीज़ में सेल करनी है, कि ए रोट अ लेटर टू बी दैट ही वांटेड टू सेल हिज वॉच फॉर ₹2000 टू बी। उसी दिन, उसी सेम डे जिस दिन ए ने लेटर लिखा, बी ने भी एक लेटर ए को लिखा, और उसमें वो ऑफ़र क्या कर रहा था कि ही वांट्स टू परचेज द एज वॉच वर्थ ₹2000। अब ये लेटर से क्रॉस्ड हो गए क्योंकि सेम डे लिखा गया है। सो यहाँ पे क्या है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, देयर इज़ नो कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी। इज इट क्लियर? देन कम्स इन्विटेशन टू ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर क्या है? देखो, ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर में क्या है कि यहाँ पे एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाती हूँ कि आप मॉल्स वगैरह में जा रहे हो, कोई इजी डे है, कोई बचत मार्केट है, इस तरह के काफ़ी आपके हैं शोरूम, जनरल स्टोर्स। तो उसमें क्या होता है कि गुड्स डिस्प्ले होते हैं आपके तरह से, वो जो आपके शेल्फ्स बने होते हैं वहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। उस पर क्या आपका प्राइस का भी लिखा होता है, प्राइस टैग भी होता है, ठीक है। तो उसमें जो भी आप खरीदने में इंटरेस्टेड हो, आप एक बास्केट लेते हो, बास्केट में डाल लेते हो। अब यहाँ पे ऑफ़र आप कर रहे हो, वो शॉपकीपर नहीं कर रहा। अगर आप काउंटर पे लेके जा रहे हो वो सामान, तो वहाँ पे क्या है कि काउंटर पे वो जो खड़ा है बंदा वहाँ पे, जो उसका ओनर है, वो मना कर सकता है कि हमें ये चीज़ सेल नहीं करनी। सो हेयर इन ऑफ़र, इन्विटेशन टू ऑफ़र, आप ऑफ़र कर रहे हो और जो शॉपकीपर है वो आपका ऑफ़र एक्सेप्ट करे या ना करे, दैट्स अप टू हिम। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑफ़र एंड इन्विटेशन टू ऑफ़र? ऑफ़र क्या है? ये एक फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस है कि जो एक ऑफरर करता है, ठीक है, जो ऑफरर, जिसका गुड्स होते हैं वो करता है, ठीक है, जिसके गुड्स होते हैं वो ऑफ़र करता है, अपनी फाइनल एक्सप्रेशन बताता है कि उसको ये गुड्स सेल करने हैं, एंड अगर उसने सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, देन ही इज़ बाउंड बाय हिज ऑफ़र, ही इज़ बाउंड बाय हिज ऑफ़र, कि ऑफरर अपने ऑफ़र से बाउंड होगा उसमें। अब क्या है, लेकिन इन्विटेशन टू ऑफ़र में क्या है? इन्विटेशन टू ऑफ़र में क्या है कि कस्टमर यहाँ पे ऑफ़र करता है एंड शॉपकीपर, इट्स अप टू हिम टू वेदर टू एक्सेप्ट और नॉट। बुक सेलर है, वो कैटलॉग भेजता है बुक्स का, ठीक है, उसके आगे उसके प्राइस लिखे होते हैं, कि बुक्स के प्राइस लिखे होते हैं, और वो काफ़ी पर्सन्स को वो अपना कैटलॉग भेज देते हैं। तो ये क्या है? इन्विटेशन टू ऑफ़र। जो इंटरेस्टेड पार्टी है वो ऑफ़र कर सकती है, और बुक सेलर में एक्सेप्ट दी ऑफ़र और रिजेक्ट दी ऑफ़र। इज इट क्लियर? Invitation to offer. So we have done specific offer, general offer, cross offer, invitation to offer, and last is counter offer. लास्ट इज़ काउंटर ऑफ़र। अब काउंटर ऑफ़र में आपका क्या है कि यहाँ पे इवन इन दिस केस देयर नो कॉन्ट्रैक्ट इज़ कंक्लूडेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर सपोज आई हैव मेड एन ऑफ़र टू सेल माई लॉ बुक्स वर्थ ₹1000। अब आप कह रहे हो कि ठीक है, मुझे आपकी लॉ बुक्स खरीदनी है, बट 1000 रुपीज़ में नहीं, 800 रुपीज़ में खरीदनी है। यहाँ पे आपने काउंटर ऑफ़र कर दिया, तो यहाँ पे कोई भी ऑफ़र कंक्लूड नहीं हुआ। हाँ, अगर मैंने आपका ये कह लिया कि ओके आप 800 में मेरी बुक्स को ले लो, देन यहाँ पे नया कॉन्ट्रैक्ट ऑर्गेनाइज होगा, जो पुराना था ऑफ़र था वो कोई भी नहीं होगा। तो काउंटर ऑफ़र मीन्स देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड
इज इट क्लियर? सो वेदर ऑफर है, अब ऑफ़र लैप्स हो सकता है या नहीं हो सकता, कि ऑफ़र जो है आपका वो लैप्स हो सकता है या नहीं हो सकता। ऑफ़र कैन लैप्स, वो कहाँ पे दिया हुआ है? सेक्शन 6 में दिया हुआ है। तो अब ऑफ़र है, कैसे कब लैप्स होगा, कि कब ऑफ़र ख़त्म हो सकता है? अगर ये एक्सेप्ट नहीं हुआ विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। विद इन द स्पेसिफाइड टाइम मीन्स, विद इन स्पेसिफाइड टाइम मीन्स सो विद इन स्पेसिफाइड टाइम मीन्स कि अगर पार्टी ने जो ऑफर था उस ही सेड कि यू हैव टू एक्सेप्ट माई ऑफ़र विद इन 5 डेज़। अब आप 5 डेज़ में नहीं एक्सेप्ट करते हो, इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट दैट इन 5 डेज़, तो उसमें क्या है? ऑफ़र विल लैप्स। इसीलिए ऑफ़र विल लैप्स। और अगर स्पेसिफाइड टाइम मेंशन नहीं है, देन यू हैव टू एक्सेप्ट विद इन अ रीजनेबल टाइम। नाउ व्हाट इज़ रीजनेबल टाइम? कहीं डिफाइन नहीं है आपका रीजनेबल टाइम। दैट डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस। इज इट क्लियर? तो ऑफ़र आपका, अगर आप रीजनेबल टाइम में बिजनेस आवर्स में नहीं एक्सेप्ट करते हो, आपका ऑफ़र है लैप्स हो जाएगा। इज इट क्लियर? देन इफ़ एनी मोड इज़ प्रिस्क्राइब्ड, अगर कोई मोड प्रिस्क्राइब्ड है कि इस तरीके से आपको ऑफ़र एक्सेप्ट करना है, अगर आप उस तरीके से नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, ऑफ़र आपका लैप्स हो जाएगा। ठीक है? अगर कहा कि कोई लेटर से या टेलीफोनिकली एक्सेप्ट करना है, लेटर से एक्सेप्ट करना है, ईमेल से एक्सेप्ट करना है, तो आपको उसी तरह से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर नहीं आप एक्सेप्ट कर रहे हो, योर ऑफ़र विल लैप्स। और अगर कोई मोड प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, देन विद इन some reasonable manner, again reasonable manner depends upon facts and circumstances of the case, then offeree rejects it by distinct refusal to accept it, कि उसने मना ही कर दिया। और अगर अभी ऑफ़र हो गया है लेकिन एक्सेप्टेंस अभी नहीं हुई है ऑफ़र की, और ऑफरर या ऑफरी में से किसी की भी डेथ हो जाए, तब भी आपका ऑफ़र लैप्स हो जाएगा। इन केस यू हैव एक्सेप्टेड द ऑफ़र, इन केस यू हैव एक्सेप्टेड द ऑफ़र और ऑफर की डेथ हो गई है, देन जो ऑफ़र वो कौन फुलफ़िल करेगा? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। देन अगर एक्सेप्टर, अगर कोई कंडीशन ऑलरेडी लगाई गई है, इस तरह से एक्सेप्ट करना है आपको, और आपने वो कंडीशन फुलफ़िल नहीं की है, एक्सेप्टर ने नहीं की है, देन ऑल्सो योर ऑफ़र विल लैप्स। देन लास्ट कंडीशन की ऑफ़र कब लैप्स हो जाएगा? ऑफ़र लैप्स हो जाएगा अगर ऑफरी ने काउंटर ऑफ़र कर दिया, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। इसका मतलब क्या है कि ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया, कोई कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड नहीं हुआ, तो ऑफरी है मे एक्सेप्ट और रिजेक्ट दी ऑफ़र। इज इट क्लियर? देन कम्स रेवोकेशन ऑफ ऑफ़र, कि वेदर ऑफ़र कैन बी रिवोक। ऑफरर है जिसने ऑफ़र किया वो रिवोक कर सकता है? कर सकते हैं। कब करेगा? एक्सेप्टेंस से पहले, एक्सेप्टिंग से पहले। अगर एक बार ऑफ़र एक्सेप्ट हो गया, देन ही कैन नॉट रिवोक हिज ऑफ़र, ओनली बिफोर एक्सेप्टेंस ही कैन रिवोक हिज ऑफ़र। ठीक है? जैसे ऑफ़र था, ऑलरेडी मैंने आपको सेक्शन 3 में बताया था कि ऑफ़र भी कम्युनिकेट होकर किया जाएगा, एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट की जाएगी, और अगर आपको ऑफ़र रिवोक करना है, इवन दैट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी कि यू वांट टू रिवोक योर offer. Is it clear? Then third is that before its actual commission, the offeree may accept the offer and create a binding contract. Revocation must reach the offer before he sends out the acceptance. Is it clear? कि रेवोकेशन उस, अगर आपने पार्टी को ऑफ़र कर दिया है, पार्टी को आपने ऑफ़र किया है, ठीक है, अब आपको एक ऑफ़र तो कर दिया, अब आपको एक ही रिवोक करना है, ऑफ़र वापस लेना अपना ऑफ़र। तो आप क्या है कि ऑफरी से पहले, कि जब ऑफरी ने एक्सेप्टेंस भेजने से पहले आपको अपना ऑफ़र रिवोक करना पड़ेगा। अगर उसने एक बार अपना एक्सेप्टेंस भेज दिया, देन यू कैन नॉट रिवोक। देखो, अगर टेलीफोनिकली बात करें, कि अगर टेलीफोनिकली हो या आप आमने सामने हो, टेलीफोनिकली में भी यही होगा कि पर्सन्स आर इन प्रेजेंस ऑफ ईच अदर। वहाँ पे क्या है, मैंने ऑफ़र कर दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो वहाँ तो रिवोकेशन का मतलब ही नहीं है।
ठीक है, आप अपना ऑफ़र वापस ले ही नहीं सकते, रिवोक कर ही नहीं सकते हो। सिर्फ वहाँ पे बात आती है रिवोकेशन ऑफ ऑफ़र की, जहाँ पे थ्रू लेटर्स हैं, थ्रू ईमेल्स हैं। तो वही है कि जब तक उसने ऑफरी ने अपनी एक्सेप्टेंस नहीं भेजी है, उससे पहले पहले आप रिवोक कर सकते हो। कि ये अब ये क्या है कि एक्सेप्टेंस ऑफर कब कंप्लीट होता है, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, वी विल डू लेटर ऑन, दैट इज अंडर सेक्शन 4। नेक्स्ट इज ऑफर टू कीप ओपन फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है, अब ये है कि ऑफर है, आपने कुछ टाइम के पीरियड के लिए उसको ओपन किया है, ठीक है, टाइम पीरियड के लिए ओपन किया है, तो एट दैट टाइम आप अपना उस टाइम पे अगर ऑफर एक्सेप्ट कर लिया इज ओके, अदरवाइज यू कैन रिवोक योर ऑफर। So guys, in this second lecture we have discussed about the offer. What is offer, kinds of offer, how conditions of offer, lapse, how whether offer can lapse or not, whether offer can revoke or not. So this was under this section. In third session, that is in the next session, we will discuss about the acceptance. Thank you.